नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ वॉच में, वो शो जहाँ पे हम लेकर के चलते हैं आपको आईपीओ उसके बाजार में समझने की कोशिश करते हैं कि ये नए आईपीओस कौन से आ रहे हैं, उसमें क्या खास बात है, किस तरीके की चीज़ें हैं और कंपनीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारे साथ में एक खास मैनेजमेंट है एक आने वाले आईपीओ का। कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक और हमारे साथ में उसका मैनेजमेंट जुड़ रहा है। स्वागत करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ में है अंकुर वैद्य जी और ललित सेठी जी। स्वागत है सर शो पे। Thank you, Lavjeet, for having us. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो दोनों मेहमान हमारे साथ में हैं और कॉनकॉर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आईपीओ आने वाला है, लेकिन समझ तो लें पहले कि है किस चीज़ का, क्या कंपनी है। अंकुर जी, क्या आप हमें मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कॉनकॉर्ड बायोटेक की हिस्ट्री प्रोफाइलिंग बेसिकली कि कहाँ से शुरू हुई कंपनी और क्या-क्या चीज़ें करती है? Sure. So, Concord was started in the year 2000 when Mr. Sudhir Vaid, जो कि Concord के chairman and managing director हैं, he started the company in 2004. And, what we focused on, कि we will only manufacture fermentation and semi-synthetic products. जब हम semi-synthetic कहते हैं, मतलब जहाँ पे fermentation is the starting material. So, हमारा since our start, since our inception, we have focused on manufacturing this in this segment only. And since our inception till date, हम जितने भी products बनाते हैं, they are only fermentation and semi-synthetic. We are not into any chemical synthesis APIs. And I would say that makes us very unique because globally, अगर आप देखेंगे, there are a very few companies which are in this space of fermentation. And then in 2004, Rare Enterprise, Rakesh ji had invested in Concord. And 2005 से हमारा US FDA inspections चालू हो गए थे इस साइट पे. And every 2-3 years they've been inspecting this size till last being in 2019 for Unit 1. So currently we have 3 manufacturing facilities. दो API facilities हैं and एक finish formulation facility. हमारी जो पहली facility API facility है, is approved by all global major regulatory agencies like US है, Europe है, Japan, Korea. हमारी जो दूसरी फैसिलिटी है वो फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है जहाँ पे हम टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड सस्पेंशन बनाते हैं, particularly in the nephrology segment. And we are catering to global markets. India है, US, rest of the world markets. And that facility is also approved by US FDA and several other emerging market authorities. And हमारी जो third facility है, which is the newly set up facility just a year and a half back. That facility is also for fermentation APIs only, and that also got approved recently, just few months back in June by US FDA. In terms of अगर आप capacity बात करें, हमारी जो capacity फर्स्ट API यूनिट पे है वो 450 मीटर क्यूब ऑफ फर्मेंटेशन की है, एंड जो हमारी नई साइट है वो 800 मीटर क्यूब. तो हमने लास्ट साल 1.5 साल में अपनी कैपेसिटी जो है वो हमने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज की है इन द एरिया ऑफ फर्मेंटेशन, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ लीडरशिप पोजीशन ऑन आवर फर्मेंटेशन API प्रोडक्ट्स दैट वी करंटली हैव. एंड हमारे पास काफी प्रोडक्ट्स हैं in the pipeline which will give a strong boost to us going forward. अगर हम बात करें हमारे API segment की, we are mainly present in the immunosuppressants, which is basically for transplants. जब patients kidney transplant होता है या liver transplant होता है तो वहाँ पे ये सारे drugs use किए जाते हैं और उसके लिए जो API बनता है which is through fermentation वो हम बनाते हैं. I would say that we are the only company in the world जिसके पास fermentation based transplant products जो है हम हमारे portfolio में हैं. Globally there is no company like Concord जिसके पास ये entire portfolio है. And apart from immunosuppressants, we are also there very strong in the oncology segment and certain niche anti-infectives and antifungal segment. So close to around 23 products are there with us in our pipeline.
So that's a little bit about Concord. We have a very strong presence also in India market. तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो हम इंडिया में भी देते हैं to more than 70 countries में है, और हमारे जो सा कस्टमर बेस है that is more than 200. 70 कंट्रीज में हम बिजनेस कर रहे हैं, which is interesting. More than लेकिन 70. इसमें more than 70, sorry, more than 70, and that is 70 वाला, not 70 में. ठीक. जी. इसमें से परसेंटेज टर्म्स में अगर थोड़ा ब्रॉडली समझने की कोशिश करें, एक सबसे बड़ा मार्केट शेयर, ये सबसे बड़ा हमारा बिजनेस कहाँ से आता है, कौन सी कंट्रीज हैं, और इसमें इंडिया कहाँ पे खड़ा होता है? नॉर्मली क्या रहता है कि 50% हमारा जो सा बिजनेस है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है, और 50% का जो सा बिजनेस है वो हमारा एक्सपोर्ट्स का है. और यदि आप एक्सपोर्ट्स में देखें तो यूएस में हमारा करीब 17% का बिजनेस रहता है, और बाकी 33% का जो सा बिजनेस है वो दूसरे देशों से आता है. बढ़िया. व्हिच इज आल्सो गुड, बट थोड़ा सा क्योंकि यूएस के साथ में अक्सर हम बहुत अच्छी चीजें नहीं देखते, कई बार बीच बीच में वो शॉक्स आते रहते हैं, स्पेशली फार्मा सेक्टर को लेकर के, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है. बट कितना समय से हम ये सारी कंट्रीज के साथ में काम कर रहे हैं, ललित जी? काफी समय से हम लोग इन कंट्रीज में प्रेजेंट हैं. जैसे अंकुर जी ने बताया अभी कि जो सा फर्स्ट यूएस एफडीए हमारे को 2005 में ही मिल गया था, तो 2005 के बाद से हम लोग दूसरे देशों में अपना व्यापार कर रहे हैं. एंड हमारा जो प्रेजेंस है जापान में, वी आर काफी बड़े हैं. सो बिकॉज यू नो वी आर अ क्वालिटी oriented player, if I put it, and Japan markets are very very stringent on quality norms as well. तो वहाँ पे हमारा प्रेजेंस साल भर साल काफी बढ़ता जा रहा है. ठीक है. तो लेकिन ऑलमोस्ट 2 डेकेड से हम सारी दुनिया के बाजारों में हैं, हमारे शेयर बाजार में आने में इतना लेट क्यों हुआ? See, I think ये जो हमारी 20-23 साल की जर्नी रही है, इसमें हमने अपने आप को एक लीडर पोजीशन पे खड़ा करने में समय लगा है. अगर आप देखें कि इतनी बड़ी कैपेसिटीज डालना एंड इतने सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को खड़ा करना, इट डज टेक टाइम. एंड यू नो नाउ दैट वी आर एट दैट पोजीशन, we felt that this is the right time that we get into the markets. जी, इंटरेस्टिंग. और ये टाइम ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको, कि अब हिंदुस्तान का समय शुरू हो रहा है, खासकर इस तरीके की चीजों में. एंड वी आर आल्सो नाउ बीइंग कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. सो ऑब्वियसली इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था. इस समय जिस तरीके की स्टेबिलिटी है, जिस तरीके की चीजें हैं इकोनॉमिकली, जिस तरीके की ग्रोथ है, तो उसके अंदर में ये चीज जो आप कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और निश्चित रूप से निवेशकों के लिए कुछ बहुत अच्छा इसके अंदर में रिटर्न होना चाहिए. एक बार एक्सपेंशन की तरफ समझने की कोशिश करूंगा सर, कि किस तरीके के प्लान्स हैं इसके आगे, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूज सेटअप आपने लगा रखे हैं जो आपने अभी बताया, और जो कैपेसिटी है वो काफी बेहतर है. इसका नेक्स्ट क्या, अब कितना बड़ा और एक्सपेंशन, कितना स्कोप है और कितना और हो सकता है? बेसिकली एक्सपेंशन की यदि आप बात करें तो एपीआई में जो सी यूनिट 3 है, जहाँ पे अभी 1-1.5 साल पहले हम लोगों की 800 मीटर क्यूब की कैपेसिटी लगाई गई थी. ओएसडी में भी हमारे पास काफी कैपेसिटी है. वहाँ पे हम लोग 800 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स वगैरह हम बना सकते हैं. आने वाले समय में हम लोग एक इंजेक्टेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट करीब इस साल के आखिर तक वो शायद कंप्लीट हो जाएगा. तो हमारे पास तीनों वर्टिकल्स रहेंगे, एपीआई रहेगा, ओएसडी रहेगा, और एट द सेम टाइम वी विल बी प्रेजेंट इन द इंजेक्टेबल बिजनेस आल्सो. देखिए, हम लोग जो है वी आर वर्किंग इन मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर इन द एरिया ऑफ फर्मेंटेशन एपीआईज. एंड हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं. एंड ओवर द इयर्स हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे फर्मेंटेशन में लाए हैं जहाँ पे हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑन सम ऑफ द अदर मार्केट्स इंक्लूडिंग चाइना, वो हमने काफ़ी कम की है. एंड हम यही सोच से हमने ये कैपेसिटी डाली है कि आगे जाके हम और प्रोडक्ट्स फर्मेंटेशन में लाएं जो कि नीश प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, एंड हम इंडिया को आत्मनिर्भर और बनाएं इन दिस एरिया ऑफ फर्मेंटेशन एपीआईज. जी.
ले सर अभी हमारी यूनिट्स कितनी हुई अहमदाबाद में? मैं मान के चल रहा हूँ कि वो तो होंगी, लेकिन अहमदाबाद के अलावा कितनी ही या टोटल कितनी है अगर यूनिट्स की बात करी जाए? टोटल हमारे पास 3 यूनिट्स हैं और तीनों ही गुजरात में हैं। जैसे हाँ, एक यूनिट हमारी है धोलका में और दूसरी यूनिट वालथेरा में है, जहाँ पे ओएसडी का फैक्ट्री है और उसके साथ ही हम लोग इंजेक्टेबल का भी प्लांट लगा रहे हैं। और तीसरी जो सी फैसिलिटी है वो लिम्बासी में है और तीनों ही अहमदाबाद से करीब 1 घंटे 45 मिनट की दूरी पर है। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेंशन जो कर रहे हैं वो इन्हीं फैसिलिटीज में करेंगे या इसके बियॉन्ड भी हमें कुछ नई यूनिट्स लगाना होगा? नहीं जी, अभी तो जो सा हमारा इंजेक्टेबल का प्लांट है वो हमारा वालथेरा की जो सी साइट है उसके साथ ही वाली साइट में है हो रहा है। ठीक है, और चलने से पहले एक चीज और अंकुर जी समझना चाह रहा हूँ कि ये जो फंड्स हम रेज करेंगे आईपीओ के माध्यम से उसको कैसे यूटिलाइज करने जा रहे हैं? फंड्स रेजिंग बेसिकली ये कंप्लीट ओएफएस है, जो से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जो क्वाड्रिया कैपिटल है उसी के लिए ही हम लोग ये आईपीओ है, ओएफएस वगैरह है, ये कंप्लीट कंपनी में कुछ भी पैसा लेने का कुछ प्लान नहीं है और उनके अलावा कोई दूसरा शेयर होल्डर भी नहीं है जो अपने शेयर्स को बेच रहा हो। सो इट इज ओनली बेसिकली टू गिव एन एग्जिट रूट टू देम। ठीक, तो इस फंड से केवल रिप्लेसमेंट होगा बेसिकली, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स निकल करके और उसके अंदर में अब बाजार और बहुत सारे और नए स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे। जी दैट्स करेक्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग और बढ़िया है। और जिस तरीके का बिजनेस है, क्यों कम ही लोगों उसमें अंदर में और केवल कोई फंड ही क्यों उसके अंदर में उसका फायदा उठाए, क्योंकि ये वो बिजनेस है जहां से सारी दुनिया उसका फायदा उठाती है, उसके आपके प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ अब निवेशकों को भी उससे फायदा मिलना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत बढ़िया बिजनेस और बहुत बढ़िया आपका जो पेडिग्री है, जो पीछे की चीजें हैं जो वो इंटरेस्टिंग है। बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज बिजनेस की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि आपका आईपीओ, आपका जो ये फंड रेजिंग है ये बहुत सक्सेसफुल रहे, बाजार आपका खुले दिल से खुले हाथों से स्वागत करे, और उम्मीद करते हैं कि उसके बाद फिर आपसे चर्चा होगी लिस्टिंग के बाद में, और फिर समझने की कोशिश करेंगे आगे का रास्ता। थैंक यू, शुक्रिया, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो ये था कॉनकॉर्ड बायोटेक का मैनेजमेंट जो बता रहे थे कि किस तरीके से प्लान्स हैं आगे के और किस तरीके का बिजनेस है एग्जिस्टिंग, सभी चीजें टेक्निकली से लेकर के और फंडामेंटली तक बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और निश्चित रूप से बढ़िया रिस्पांस मिलना चाहिए लिस्टिंग के अंदर में, क्योंकि बाजार जिस तरीके से इस तरीके के नए एक्सपेरिमेंट्स को जितना खुले दिल से स्वागत कर रहा है, तो उसी ट्रेंड को शायद मेंटेन करते हुए ये आगे भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग मौका है निवेशकों के लिए साबित हो सकता है। और समझने की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे कि किस तरीके से इस आईपीओ को देख रहे हैं और इसके अंदर में क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये सारी जानकारी, ये सारी खबरें लेकर के आते रहेंगे आपके लिए इंडिया न्यूज बिजनेस पे। देखते रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस और बताते रहिएगा कि और क्या चीजें हम आपके लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।